नमस्कार, मेरा नाम है रेशम and I welcome you all to योग की पाठशाला. So once again, I'm going to welcome Ma'am Neelima in the house, and she's going to tell us about Sutraneti, the details, and I'm sure this is the much awaited segment of do's and don'ts. So without wasting much time, I'd like to put up questions to Neelima ma'am. Welcome Neelima ma'am. Yeah. So, ma'am, my first question is, ma'am, Sutra Neti, is there just one type of Sutra Neti, or there are more than one type, or there is more than one type of Sutra Neti? And, ma'am, what's the process? What's the right process? If there is just one type of Sutra Neti, then what's the right process of it? Yes, ma'am. सूत्र नीति जैसे कि हम देखते हैं कि इट्स अ क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ नेजल पैसेज. तो उसके लिए दो तरीके से हम करते हैं प्रैक्टिस. फर्स्ट होता है कॉटन थ्रेड. कॉटन थ्रेड से भी की जाती है और साथ में रबर कैथेटर से भी. लेकिन जो कॉटन थ्रेड से की जाती है उसे सूत्र नीति कहा जाता है, और जो रबर कैथेटर से की जाती है उसे दंड नीति कहा जाता है. Okay, that's very informative, ma'am. कि जो कॉटन थ्रेड से की जाती है that is सूत्र नीति, और जो रबर कैथेटर से की जाती है that is दंड नीति. Because you know most of the people who perform this neti, they believe that doing it with the rubber catheter is sutra neti. So it is again very informative. कि मैम दंड नीति क्यों मैम? is literally does that mean that punishment or something? दंड यानी जैसे कि उसका स्ट्रक्चर जो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो एक ट्यूब को भी दंड कहा जाता है. ओके ओके, ये उसे दंड नीति भी कहा जाता है. अच्छा अच्छा, I didn't know that. That's really useful. Acha ma'am, my second question is, ma'am, what is the right age to perform Dandaneti or Sutraneti, ma'am? And for the beginners, like even a child can perform Sutraneti. Is it advisable for a child to perform Sutraneti or Dandaneti? Or just adults are advisable to perform this Neti Kriya? यस मैम. पहले कैसे होता है कि हम जो भी क्रिया करते हैं तो यही सोचते हैं कि बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हुई है या नहीं. तो उस बेसिस पे हम उनको आसन, प्राणायाम या फिर शुद्धि क्रिया करवाते हैं. लेकिन हम आफ्टर 12 इयर्स एडवाइस करते हैं. यस. लेकिन एज अ ट्रीटमेंट आप छोटे बच्चों से भी करवा सकते हैं जो कि अंडर 12 इयर्स है. एज अ ट्रीटमेंट, जैसे कि कई बार प्रॉब्लम होती है बच्चों में कंटिन्यूअसली माउथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो होती है, एज अ ट्रीटमेंट आप उनसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन. हाँ, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ना, ये जो आप बता रहे हैं माउथ ब्रीदिंग की, दैट दे फील सफोकेटेड एंड दे ब्रीथ फ्रॉम देयर माउथ, देन फ्रॉम देयर नोज. Okay, so this is a very common problem among children. तो इसके लिए सूत्र नीति advisable है मैम, but definitely under the expert guidance. Okay, ma'am, is there any frequency that has to be followed for सूत्र नीति और दंड नीति, या रोज ही कर सकते हैं ये क्रिया? क्योंकि जैसे आपने बताया ये बहुत यूजफुल होती है. It cleans the nasal passageway and the throat passageway. So can it be performed on a daily basis, or ma'am there is an ideal time to perform it? When this neti should be performed, ma'am? Early in the morning or after the meals, or ma'am kitni frequency honi chahiye iski? Can it be performed daily, or there is a specific time and a duration of it? Please tell us. यस मैम. जैसे कि हमने देखा कि इट्स अ नेजल पैसेज क्लीनिंग प्रोसेस और टेक्निक. तो जैसे कि नेजल पैसेज से वो रिलेटेड है, कनेक्टेड है, तो उसके लिए
हमें ये जरूरी पता होना चाहिए, एक बात पता होनी चाहिए कि जो इंटरनल पार्ट होता है नेजल पैसेज का, वो बहुत ही डेलिकेट होता है। अच्छा तो अच्छा, या उसके लिए ये सूत्र नीति हम डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इट शुड बी प्रैक्टिस इन ट्वाइस और ट्वाइस अ मंथ और वंस अ वीक। so एक बार, yeah, फिर एक महीने में 2 बार। Hanji. So it depends, but you're saying that advisable ये है कि once in a week, Yes. or twice a month, whichever Yes. is comfortable for the one who performing Sutra Niti. Yes, All ma'am. right. Daily basis पे हम पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। Definitely, ma'am. इतना tender, इतना delicate होता है nasal passageway, and then there are very thin veins inside, so you might end up hurting it. बहुत सारे जो beginners होते हैं, हाँ जी मैम, जो नेचुरल रिसेप्टर्स होते हैं नेजल पैसेज के, वो वीकन होने लगते हैं रोज अगर आप करोगे प्रैक्टिस। हाँ, हमें वो डेली बेसिस पे नहीं करना है, डेली नहीं करना है। Besides hurting the nasal passageway, the natural receptors also gets weakened. So that's something that has to be kept in mind before performing Sutra Neti and Dand Neti. Acha ma'am, ye bataiye, it's very very common question. Is there a specific measurement of the catheter and the cotton thread, or ma'am, it's just a general catheter that you can easily pick up from the market, or you can order online also? Availability is not a problem, but is there a specific measurement to it in terms of length and width? And for the beginners, one should use a thinner one, and the ones who are experienced and the ones who are regularly practicing it can go with a thicker one. Anything of that sort, ma'am? Yes ma'am, absolutely right ma'am. देखो कैसे होता है कि जो रेगुलर योगी होते हैं, हाँ जी, उन्हें प्रैक्टिस होती है, तो इसलिए वो जो कॉटन थ्रेड होता है वो 4 mm का यूज करते हैं और उनको इजीली हो जाता है। लेकिन जो बिगिनर्स है वो रबर कैथेटर यूज कर सकते हैं, जो कि कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं। ओके, उसमें भी साइज होती है 1 to 3 mm। 1 to 3 mm, ऑलराइट। वो उनका मेजरमेंट होता है। वैसे ही 35 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए, जैसे कि 1 to 3 mm विड्थ एंड 35 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। All right, ma'am. This is worth an information that please choose or pick your catheter or the cotton thread according to the length and width, keeping in mind. Yes. So, yeah, that's very useful information, ma'am. Ma'am, next question is that, ma'am, what is, I've heard about two terms, which is Purva Karma and Paschat Karma. So these terms, I would like to know that are these two terms only associated with Sutra Neti or Dand Neti, or they are associated with other Kriyas and other asanas as well? And ma'am, what are these terms all about? Please tell us. Yes, ma'am, absolutely correct, ma'am. कि हर कोई प्रोसेस होती है, जैसे क्रियाएं होती है या फिर प्राणायाम, आसन, जो भी होता है उसके लिए हम कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करते हैं। तो उसके लिए कहा जाता है, जो पहले हम तैयारियां करते हैं उससे कहा जाता है पूर्व कर्म। ओके, हाँ, और वैसे ही आफ्टर प्रैक्टिसिंग, आपकी प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है उसे कहा जाता है पश्चात कर्म, क्योंकि वो आपके प्रैक्टिस के बाद होता है, तो उसे पश्चात, जो बाद में करने वाला कर्म होता है, जो एक्शन होती है, उसे कहते हैं पश्चात कर्म। Ma'am, literally also it is like the previous and the post, the former and the later, preparations that are involved for any kriya. So they, of course, the purva karma that you mentioned is the
preparation that you do, the pre-prep that we call it, before any kriya, ma'am. So वो पूर्व कर्मा हो गया, and पाश्चात कर्मा is the preparation that we do after the kriya. Okay, so ma'am, what type of preparation is required for Sutra Niti and Dand Niti, ma'am? क्या करना चाहिए हमको? जैसे कि हमने ये देखा कि हर एक क्रिया के लिए हमें पूर्व कर्म एंड पश्चात कर्म वो ध्यान रखना पड़ता है, तो वैसे ही सूत्र नीति के लिए भी वैसे ही होते हैं। तो सूत्र नीति के लिए पूर्व कर्म हमें याद रखना है कि जब आप अगर सुबह सूत्र नीति करना चाहते हैं तो उसके पहले रात को आपको नासिका मार्ग में 2 या 3 बूंदे हमारे असली घी, जो शुद्ध घी होता है, देशी घी, ओके, घी, और साथ अगर वो भी नहीं है तो आप बटर यूज कर सकते हो, लेकिन वो भी फ्रेश होना चाहिए, घर पे बना हुआ, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो बटर होता है बॉडी टेम्परेचर पे वो मेल्ट होने लगता है, तो यस, तो वो बहुत अच्छा भी होता है। तो आप कौन सा भी यूज कर सकते हैं, ये है पूर्व कर्म। और साथ में ही जो भी आप थ्रेड, कॉटन थ्रेड या फिर रबर कैथेटर यूज करते हो, उसको लुब्रिकेंट करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इजीली इंसर्ट हम कर सके हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। हम जो इंसर्ट करते हैं, रबर कैथेटर हो या फिर कॉटन थ्रेड, तो वो इजीली अंदर जाने के लिए अगर वो लुब्रिकेटेड है तो वो इजीली जाएगा। यस मैम, ये बहुत बार देखा गया है विद बिगनर्स के the ones who are learning to perform सूत्र नीति और दंड नीति, वो एक बार आसन या क्रिया सीखने के बाद फौरन स्टार्ट करते हैं सूत्र नीति या दंड नीति। उससे क्या होता है मैम, मोस्ट ऑफ द केसेस they end up hurting themselves in the nasal passageway. So ये बहुत ही रिस्की होता है, even if you're performing under the guidance of an expert. तो मैम ये बहुत जरूरी है कि उसको ना सॉल्ट वाटर में, ल्यूकवार्म वाटर में आप डिप करके रखें, एंड देन यू ल्यूब्रिकेट इट एज वेल सो दैट इट कैन स्मूथली गो इनसाइड द नेजल पैसेज। ये भी कैसे मैम, ये भी एक पूर्व कर्म ही है कि हम जो कैथेटर यूज करते हैं उसको जैसे लुब्रिकेटेड करना है तो उसको क्लीन भी करना जरूरी है। सॉल्टी वाटर, जो कि गर्म पानी या फिर गुनगुना पानी हो, उसमें आप कम से कम 5 या 10 मिनट तक आपको भिगो के रखना है। तो ये भी एक पूर्व कर्म ही है। तो जैसे पूर्व कर्म है वैसे पश्चात कर्म भी है उसके लिए। अच्छा। तो उसके लिए सूत्र नीति के बाद हमेशा आपको जल नीति करना है। अच्छा, तो मतलब जल नीति से पहले करनी चाहिए सूत्र नीति? क्योंकि क्या होता है मैम, जल नीति जब भी हम करते हैं जो म्यूकस होता है, जैसे कि वो जमा होता है, whatever the residue, वो रेसिड्यू होता है, वो निकल जाता है। जल नीति के बाद नाक ब्लो होती रहती है, बहती रहती है, तो वो एक डिस्टर्बेंस हो जाता है सूत्र नीति के लिए। ऑल राइट, इस वजह से ये पहले करना चाहिए। आपको सूत्र नीति पहले करनी है, उसके बाद पश्चात कर्म आप जल नीति कर सकते हो, और जल नीति के बाद आपको कपालभाति करनी है, जो कि पहले ईच नॉस्ट्रिल से करनी है, थ्रू ईच नॉस्ट्रिल एंड देन थ्रू बोथ नॉस्ट्रिल। श्योर मैम। आपको कम से कम 5 से 6 बार आपको करनी है। Ma'am, this is worth it information, and this is very, very useful, detailed information on Sutra Niti and Dand Niti, and I'm sure our viewers will find it very useful and beneficial for them. Thank you so much, Neelima ma'am, for giving your time and giving us such valuable information on Sutra Niti and Dand Niti. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much.